شہر یروشلم روئے زمین پر وہ واحد شہر ہے جسے تینوں الہامی مذاہب یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے ماننے والے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے مقدس سرزمین تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تاریخی شہر اپنے اندر مختلف قوموں کی تاریخ، عروج و زوال، جنگ و جدل اور داستان سمیٹے ہوئے ہیں، جس نے انسان اور قدرت کے ہاتھوں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور کئی بار آباد ہوا، لیکن آج بھی یروشلم لوگوں کے دلوں میں ایک انفرادی مقام رکھتا ہے۔ شہر یروشلم اپنی جغرافیکل لوکیشن کے لحاظ سے بھی ایک عجیب ترین شہر ہے۔ یہ شہر ڈھلوان دار پہاڑی پر واقع ہے جو اسرائیل کی سرزمین سے لے کر عقبہ تک پھیلا ہوا ہے، جو جنوب اور مشرقی پہاڑیوں کے درمیان میں گھرا ہوا ہے۔ ہسٹوریکل ریکارڈز یہ بتاتے ہیں کہ یروشلم میں کبھی قحط نہیں پڑا، جبکہ یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ یروشلم کی وادی میں موجود دور دور تک پھیلے چونا پتھر اور سنگ مرمر کے بنجر وادیاں ایک پرکشش اور قدرتی وادی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ یروشلم کے کئی نام ہیں دوستوں، مختلف قوموں نے مختلف دور میں اسے الگ الگ نام سے نوازا ہے۔ اس کا سب سے پرانا نام جیبوس ہے۔ یہودی لٹریچر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو جراح کہا تھا اور بعد میں شالیم نامی بادشاہ نے 2000 سال قبل مسیح میں اس میں شیلم کا اضافہ کر دیا، اور اس طرح دو عبرانی الفاظ یعنی یورو اور شیلم کا مرکب یہ شہر یروشلم کہلایا۔ اس کے علاوہ عربوں نے اسے سنہرا شہر یعنی گولڈن سٹی کا نام بھی دیا، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنوں سے یہاں سنہری پتھروں سے بنے ہوئے مکانات جگمگا اٹھتے تھے۔ جب یہاں رومیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا، اور اس طرح مسلمان حکمرانوں نے القدس کا نام دیا تھا، جبکہ یہودی اور نصرانیوں نے اسے یروشلم کے نام سے ہی تسلیم کیا، اور اس طرح آج تک اسے یروشلم ہی پکارا جاتا ہے۔ دوستو، انسانی تاریخ میں دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا۔ اہل کتاب کے عقائد کے مطابق ایلیا وہ سرزمین ہے جس کے ذریعے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق کا آغاز شروع ہوا، جبکہ حدیث مبارکہ کے مطابق یروشلم میں سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام یا ان کے بیٹے نے قدم رکھا تھا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد حرام ہے اور اس کے 40 سالوں بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی، لیکن غالباً اس وقت یروشلم میں انسانی آبادی نہیں پھیلی تھی۔ تاریخ کے مطابق سب سے پہلے یہاں آل سام یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے اولادیں 2500 قبل مسیح میں آ کر آباد ہوئی، جنہیں کنانی کہا جاتا تھا، اور اسی لیے یروشلم کو قدیم تاریخ میں ارض کنعان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پھر 2000 قبل مسیح کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے یروشلم ہجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے اور حبرون کے مقام پر سکونت اختیار کی۔ روایتوں کے مطابق اس وقت یروشلم کے بادشاہ شیلم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور اس طرح حبرون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طاقت و قدرت میں اضافہ ہو گیا۔ یہی آپ کی اولادیں ہوئی اور آپ نے زندگی کا بڑا حصہ اسی مقام پر گزارا، اور حبرون میں ہی آپ مدفون ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ کنعان چھوڑ کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے اور لمبے عرصے تک وہاں پر فرعونیوں کے غلام بنے رہے۔ اس زمانے میں قوم عمالقہ نے ارض فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو اسی ارض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا جو بنی اسرائیل کو عطا ہونے والی تھی۔ اس وقت اسرائیلیوں کی تعداد تقریباً 7 لاکھ سے بھی زائد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکی، لیکن آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت یوشع بن نون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ سے جنگ لڑی اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح دوبارہ بنی اسرائیل فلسطین کے نواحی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئی، اور دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دارالسلطنت حبرون ہی تھا، کیونکہ اب بھی مرکزی شہر یروشلم پر عمالقہ کا ہی قبضہ تھا۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 لاکھ کے عظیم لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا اور قوم عمالقہ کو مکمل طور پر شکست دے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، اور یہیں سے یروشلم کی عظیم سیاسی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں یروشلم کے ہمسایہ شہروں نے بھی بنی اسرائیل سے امن کا معاہدہ کر لیا،
दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम के चारों अतराफ ऊंची ऊंची फसील कायम की और बड़े बड़े चश्मे खुदवा के पथरीली वादियों में बागात लगाए गए और यरूशलेम में इबादत के लिए एक हैकल की तामीर कराई गई जिसमें ताबूत सकीना को ला कर रखा गया। ये वो पाक तरीन जगह थी जो कि यहूदियों के लिए सबसे मुकद्दस माना गया है। इस हैकल को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी दौरे हुकूमत में मुकम्मल किया था और इस जगह ऊंची ऊंची और बेहतरीन इमारतों की तामीर करवाई गई जिसमें बड़े बड़े शाहराह कमरे और बरामदे बनाए गए। इस हैकल सुलेमानी को मुकम्मल होने में तकरीबन पूरे 3 साल का अरसा लगा। अब यरूशलेम बनी इसराइल का दारुस सल्तनत करार पाया और इस शहर की शान और शौकत में मजीद इजाफा हो गया। शहर में सैकड़ों नहरें खुदवाई गई, सड़कें पुख्ता की गई और इस तरह यरूशलेम अपने दौर का सबसे खूबसूरत तरीन और अजीम तरीन तजारती मरकज बन गया। दोस्तों, माहिरीन का दावा है कि इस जमाने में यरूशलेम का राब्ता दुनिया के अजीम तरीन तहजीबों और शहरों से था जिनमें वादी सिंध, मिस्र, फारस, मेसोपोटामिया शामिल हैं। वादी सिंध के शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अहले यरूशलेम सोने, चांदी, हाथी के दांत और मोर मसाले और कपास की तजारत किया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अजीम शान दौरे हुकूमत के बाद बनी इसराइल रफ्ता रफ्ता सरकश और नाफरमान हो गए। उन्होंने अपनी किताब में रद्दो बदल कर दी, पैगम्बरों को कत्ल किया और युवा की मूर्तियां बनाकर बुत परस्ती की इब्तिदा की और सूद, जिना और हर तरह के जुर्म में मुलव्वस हो गए। लिहाजा इनकी नाफरमानी के तहत यरूशलेम पर बैरूनी ताकतों ने कई बार हमले किए और दोस्तों, इस तवील तारीख में तकरीबन 17 मरतबा यरूशलेम को पूरी तरह से उजाड़ कर आबाद किया गया। इन हमलों में शाह मिस्र शिशाक का हमला और शूरी बादशाह सेखर्ब का हमला और 500 कबल मसीह में बाबल के बादशाह बख्त नसर का हमला, 300 कबल मसीह में सिकंदर आजम के जनरल स्कोपस का हमला और सन 70 ईस्वी में रोमी जनरल टाइटस का हमला तबाह कुन हमलों में शामिल थे। इनमें बख्त नसर और टाइटस के हमले से यरूशलेम और यहाँ आबाद लोगों के सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। इस हमले में हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और तौरात के नुस्खे जला दिए गए। इसराइली औरतों को असीर बना लिया गया और शहर में कत्ले आम किया गया और यहूदियों के तमाम मालो असबाब लूट लिए गए और यरूशलेम के तमाम अजीम महल्लात और तामीरात के ढेर में तब्दील कर दिया गया। टाइटस के हमले के बाद तकरीबन 5 सदियों तक शहर यरूशलेम बाज़ंतीनियों की सल्तनत में यानी ईसाइयों का हिस्सा रहा और फिर 5वीं सदी ईस्वी में इस्लाम की आमद के बाद यरूशलेम की तारीख में एक नए बाब का आगाज होता है। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के 7वें साल सफर असरा और मेराज पर तशरीफ ले गए और इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम में बैतुल मुकद्दस पहुंचे और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की नमाज की इमामत करवाई और फिर इसी मकाम पर बुराक पर सवार होकर 7 आसमानों के सफर पर रवाना हुए और इस तरह काबा शरीफ और मस्जिद नबवी के साथ यरूशलेम के बैतुल मक़दस को इस्लाम का अहम तरीन मकाम का दर्जा हासिल हुआ। 216 हिजरी यानी 236 ईस्वी में हजरत उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में बैतुल मक़दस को यहूदियों और नसारों के हाथों से आज़ाद करा लिया गया और यरूशलेम इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बना। 86 हिजरी में उम्मवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मस्जिद अल अक्सा की तामीर कराई और खलीफा अब्बास मंसूर ने मस्जिद की मरम्मत करवाई। मुसलमानों की यरूशलेम फतह करने के बाद कई अरब कबाइल वहां आकर सुकूनत वजीर हो गए और सिर्फ कुछ ही अरसे में यरूशलेम एक खास अरब इलाके में तब्दील हो गया। बनु अब्बास की खिलाफत तक यरूशलेम इस्लामी रियासत का हिस्सा रहा, लेकिन जैसे ही खिलाफत कमजोर पड़ने लगी तो 1099 ईस्वी में सलेबियों ने बैतुल मक़दस को मुसलमानों से छीन लिया और यरूशलेम में मुसलमानों के खून से होली खेली गई और तकरीबन 88 साल तक ये शहर सलेबियों के कब्जे में रहा और आखिरकार क़िबला अव्वल की आज़ादी की खातिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1187 ईस्वी में यरूशलेम को दोबारा आज़ाद करा लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद तकरीबन 700 बरसों तक यरूशलेम इस्लामी सल्तनत का हिस्सा रहा, जहाँ तुर्क उस्मानियों ने इस शहर को खूब तरक्की दी। वहीं यहूद नसारा के लिए भी इस शहर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहे। यरूशलेम ने तारीख में पहली मरतबा इतने लंबे अरसे तक अमन व अमान का दौर लिखा, लेकिन फिर भी साल 1917 में खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद यरूशलेम दोबारा फितना और फसाद का मरकज बन गया और 1948 ईस्वी को अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की साजिशों के बाद अर्ज़ फ़लस्तीन के खित्ता में सेवनी सल्तनत कायम की गई और यहूदियों ने यहाँ इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। लिहाजा अरब ममालिक इसराइल के खात्मे के लिए मैदान जंग में कूद पड़े, लेकिन यूरोप और अमेरिका के सहारे से इसराइल ने अरब ममालिक को शिकस्त दे दी और फिर 1967 ईस्वी में 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग के बाद यहूदी यरूशलेम
यरूशलेम और बैतुल मक़दस पर दोबारा से काबिज हो गए। अरब इसराइल जंग में फतह के बाद यहूदियों ने यरूशलेम समेत फलस्तीन के मशरकी इलाकों पर भी कब्जा कर लिया, जिसे आलमी बरादरी आज भी गैर कानूनी कब्जा करार देती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वक्त के साथ साथ इसराइल फलस्तीन के मजीद मुसलमान इलाकों पर कब्जा करता चला गया, जो आज तक जारी है। इन कब्जों के रद्द अमल में हर साल फलस्तीन में इसराइल के इंसान सोच जुल्म के मनाजर देखने को मिलते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फलस्तीन मुसलमान अब तकरीबन एक सदी से तकलीफ और आजमाइश की चक्की में पिस रहे हैं, और ये दुनिया की वाहिद कौम है जो खुद अपने ही इलाके में और अपने ही वतन में महाजरों की सी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिल अहले फलस्तीन के साथ धड़कते हैं, और वो किसी भी सूरत इसराइल का गाजिबाना कब्जा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। फलस्तीन का गम उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका गम है, और ये बात भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि बैतुल मक़दस का मसला फकत अहले फलस्तीन का मसला नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। अहादीस मुबारका के मुताबिक कुर्मे क़यामत के करीब यरूशलेम जंग और जदल का मरकज होगा और वहाँ इस्लाम का गलबा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी इन्हीं इलाकों दमिश्क के मशरिक में सफेद मीनार के पास होगा, और वो दज्जाल को बाब लुद के करीब कत्ल कर देंगे। दोस्तों, बाब लुद फलस्तीन के इलाके में बैतुल मक़दस के करीब है, और इस तरह फितना याजूज माजूज की हलाकत और इंतहा भी बैतुल मक़दस के करीब जबल ख़मर के पास होगी। और क़यामत के करीब वो वक्त भी आएगा कि जब एक मोमिन जमात के हाथों मुसलमान एलिया यानी बैतुल मक़दस में इस्लाम का झंडा नस्ब करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।